I hope with the last question you must have gotten a lot of clarity on percentages. Percentages को और detail में समझते हैं with this example. I hope you can see our question there, right there on the screen. Let me read the question for you. The question goes like, Rajput's salary is 90% of Ajwani's salary. Well, in that case, they are asking you, Ajwani's salary is what percentage of Rajput's salary? Well, there can be multiple approaches of solving this question. The best approach which I would recommend you to do is, see, let me put the data on the board. You are told that Rajput's salary is 90% of Ajwani's salary. Again, always remember how do you convert percentages into fractions. I hope you all remember that. 90% on fraction scale will be how much? 90% is clearly 9 by 10. Now how did I evaluate that? See, 10% is 1 by 10, 90%, 9 into 1 by 10, that becomes 9 by 10. All right. Now, can I say, ध्यान से सुनिएगा, if this is Rajput and this is Ajwani, both of these persons are written over there. If this 10 belongs to this Rajput, can I say that 9 will belong to Ajwani? Can I say that? Again, see, how am I representing these numbers? This 9 by 10, this 9 is 90% of 10. मतलब ऑन रेशियो स्केल अगर राजपूत की सैलरी 10 रुपए होती तो अजवानी की सैलरी विल बी 9. बट ऑन एक्चुअल स्केल नो मैटर व्हाट दीज नंबर्स आर, वी डोंट केयर अबाउट दैम. आई रिपीट, व्हाट मैटर्स फॉर अस इज दिस क्लियरली नथिंग बट रेशियोज. कि रेशियो में मिस्टर राजपूत इज अर्निंग 10 रुपीज एंड अजवानी इज अर्निंग 9. मुझे क्या दिया है अभी, अजवानी की सैलरी राजपूत की सैलरी का 90% है, बट पूछा इनवर्स है दैट मिस्टर राजपूत की सैलरी अजवानी की सैलरी का कितना परसेंटेज है. वेल, दैट कैन ऑल्सो बी इवैल्यूएटेड थ्रू दीज रेशियो वैल्यूज ओनली. यू नीड नॉट डील विद एक्चुअल वैल्यूज. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मैथड. मतलब अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि मिस्टर राजपूत की एक्चुअली सैलरी क्या है और मिस्टर अजवानी की एक्चुअल सैलरी क्या है, स्टिल यू आर एबल टू इवैल्यूएट दैट. हाउ? ध्यान से सुना. अभी राजपूत इज 10, अजवानी इज 9. So this 10 is what percentage of 9, that's what you're supposed to evaluate. I hope बचपन में तुमने ऐसा कुछ किया होगा. 10 by 9 multiplied by 100. As I have been constantly pitching this line that avoid using that 100. सिर्फ इसे 10 by 9 की तरह treat करो. Again, now the question boils down to this. Can you convert 1 by 9 into percentages? I hope you remember 1 by 9 on percentage scale becomes 11.11. And if 1 by 9 is 11.11, 10 by 9 will be, see, can I write it like 10 into, this 10 goes here, and 1 by 9 in terms of percentages will become 11.11%. So 10 into 11.11 is clearly 11 and 1 additional 0.1 percentage, which means अगर अजवानी की सैलरी राजपूत की सैलरी के रिस्पेक्ट में 90% है, तो राजपूत की सैलरी अजवानी की सैलरी का कितना परसेंटेज है? 111.1 percentages. I hope you all could understand that. Although this was a very simple example, all I wanted to demonstrate was that how can you deal with these, ratio wala values so that you can actually evaluate their percentage conversions. With previous example, I believe you must have gotten a lot of clarity on percentages. With this example, let's understand percentages more in detail. For example, the question reads as, Pratik's salary is 80% of Hemant's salary, whereas Hemant's salary is 80% of Raj's salary. I hope you must have realized while I was reading the question that this question is simply an application of scaling. Let me show you how. Pratik's salary is 80% of Hemant's salary. I hope you understand what is 80%, right? 80% 20% का 4 times. 20% 1 by 5 यानी 4 by 5. यानी अगर मैं प्रतीक और हेमंत की स्केलिंग करना चाहूँ या प्रतीक और हेमंत को रेशियो स्केल पे कंपेयर करना चाहूँ, सो प्रतीक की सैलरी हेमंत की सैलरी का 80% है. यानी 80% इज क्लियरली व्हाट? 4 by 5. यानी अगर किसी की सैलरी 5 है तो 5 का 80% विल बी 4. यानी अगर हेमंत की सैलरी 5 है तो प्रतीक की सैलरी कितनी होगी? 4. आई होप दिस representation makes a lot of sense to you. Now what they say is, while Hemant salary is 80% of Raj salary, जो ये हेमंत है इसकी सैलरी राज की सैलरी का 80% है. अगेन अगर एक और शख्स है पिक्चर में विच इज राज, और राज की सैलरी का हेमंत की सैलरी इज 40%, यानी कि अभी हेमंत विल बिकम 4 whereas with respect to राज का सैलरी विच इज 5. I hope this is a very simple problem now.
I hope you are understanding and realizing why have I kept Hemant in between. क्योंकि Hemant was the common number here, common person here among or between Pratik and Hemant and Raj. अभी क्या होगा class? I'll multiply this 4 above and I'll multiply this 5 down. 4 into 4 clearly 16. 5 into 5 is clearly 25. So Pratik की salary राज की सैलरी का कितना परसेंटेज है? इन शॉर्ट ही इज आस्किंग यू 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 25. कैलकुलेशन बहुत आसान है, ब्रेन में भी कर सकते हो, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर आई राइट इट हियर. 16 by 25. कैन यू टेल मी 1 by 25? 1 by 25 इज 4%. मैं क्या करूंगा? 16 का 4 टाइम्स. 16 का 4 टाइम्स क्लियरली क्लास 68. सो द आंसर इज प्रतीक की सैलरी राज की सैलरी का 68% है. Without dealing with actual values, we have figured that out. I hope you are realizing the importance of ratios and proportion में सीखी हुई scaling वाली method का importance. I hope you can read the question on the screen. The question reads as an alloy consists of 80% bronze and the rest, which is 20% brass. Bronze and brass themselves are alloys. अभी क्या बोल रहा है वो? Bronze having 60% copper and the rest zinc. So bronze में भी 60% copper है और 40% zinc है. Next, brass has copper and zinc in equal amount. यानी कि brass में copper और zinc 50-50% है ना? What percentage of alloy यानी total alloy का of bronze and brass is zinc? Question समझ आ रहा है? I repeat. What percentage of alloy of bronze and brass is zinc? Let me make you understand question through ratios. मैं ये परसेंटेजेस को रेशियोज में लिखूंगा और फिर रेशियोज की स्केलिंग करूंगा और फिर मैं समझाऊंगा कि स्केलिंग के थ्रू फाइनली क्या पूछा है किसके रिस्पेक्ट में. Let me write the data. First of all, the alloy consists of 80% bronze and rest brass. यानी अगर टोटल alloy जो भी है उसमें क्या है 80% bronze है. There it's your bronze and there somewhere it's your brass. है ना? क्या हो रहा है? अलॉय जो भी है 80% 4/5 यानी अगर अलॉय इज टोटल 5 तो ब्रॉन्ज कितना होगा? 80% विच इज 4 क्योंकि 5 का 80% इज 4. बचा हुआ 20% इज 1 विच इज ब्रास. What it says is that bronze having 60% copper and rest zinc. तो ब्रॉन्ज में 60% कॉपर है और बचा हुआ जिंक है. तो अगर ये कॉपर है और ये जिंक है तो कॉपर और जिंक को थोड़ा समझते हैं. कॉपर इज 60% यानी 20% का ट्रिपल. 20% 1/5 यानी 3/5. मतलब अगर टोटल ब्रॉन्ज 5 होता दूसरे स्केल पर, क्योंकि अभी इधर 4 है इस स्केल के अकॉर्डिंग, बट दूसरे स्केल पे अगर ब्रॉन्ज 5 होता तो उसमें 60% यानी 5 का 3 कॉपर होता, बचा हुआ 2 वुड हैव बीन जिंक. आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा. अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके स्केलिंग कर सकते हैं. And I would recommend to avoid confusion, scale it. जल्दी से देखेंगे क्लास. After scaling, what it becomes is, see, ये 4 और 5 पे स्केल होना है तो 4 नीचे मल्टीप्लाई होगा 5 ऊपर. आई होप मुझे बताने या समझाने या लिखने की जरूरत नहीं है. 5 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, दैट बिकम्स 25. 5 into 4 20, 4 into 3 12, 4 into 2 8 and 5 into 1 5. अब ये 25, 20, 12, 8, 5 ये सब क्या है? टोटल अलॉय अगर 25 यूनिट्स का है 20 ब्रॉन्ज होगा 5 ब्रास होगा. इस ब्रॉन्ज में इस 20 में ब्रॉन्ज में क्या होगा? 12 कॉपर होगा और 8 जिंक होगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अभी वो आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा. ब्रास हैज कॉपर एंड जिंक इन इक्वल प्रोपोर्शन. यानी जो ब्रास है इसमें कॉपर और जिंक इक्वल प्रोपोर्शन में. इक्वल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? 50-50%. अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, वरना अगर तुम चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो. अगर ब्रास के में कॉपर और जिंक का रेशो देखता तो यहाँ 1 के लिए वो 0.5 होता, तो 5 के लिए कहना ऐसे 2.5 होगा. तो मैं ये लिख देता हूँ सीधे 2.5 एंड 2.5. दैट इज दी ब्रास का एंड दिस इज दी ब्रॉन्ज का. आई होप ये जो स्ट्रक्चरिंग मैंने की है सभी को समझ आ रही है. टोटल 20 था, 25 था, उसमें से 20 ब्रॉन्ज है, 5 ब्रास है. ब्रॉन्ज को और अगर क्लासिफाई किया तो 12 कॉपर है, 8 जिंक है. ब्रास को अगर और क्लासिफाई किया तो 2.5 कॉपर है और 2.5 जिंक है. आगे वो क्या पूछता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रास इज जिंक. तो जिंक जो पूरे अलॉय में कितना परसेंटेज एग्जिस्ट करता है ना. अगर मैं जिंक का टोटल कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, सी हियर जिंक कितना है 8, हियर जिंक कितना है 2.5. 8 plus 2.5 is how much? I hope you can see this is clearly 10.5. So मेरे 25 के स्केल पे टोटल जो जिंक का अमाउंट है दैट इज 10.5
और मेरा अलॉय टोटल कितने का है 25 का, सो आई डिवाइड इट बाय 25. Now you have multiple approaches of solving this question. One of the approaches is consider or assume there you have 100, और वैसा वाला टेक्निक या मुझे ऑलरेडी पता है 1/25 4% होता है, तो 4% को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 4 टाइम्स 40, 0.5 का 4 टाइम्स 2, तो आंसर होगा 42%. यानी इस पूरे अलॉय में जिंक का परसेंटेज इज 42%. I hope we are making some sense and you are understanding it. Well, let's solve different variety of questions through this example. The question reads as, Gayatri scored 50% of maximum marks in the exam, yet failed by 12 marks. Had she scored 10% more than what she scored, she would have just got passing marks. Find the maximum marks of the exam. जब क्वेश्चंस बहुत बड़े हों, आप क्वेश्चंस को पार्ट्स में ब्रेक करिए, थोड़े थोड़े पार्ट्स में थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, एंड अगेन परसेंटेजेस को रेशियोज पे डील करिए. क्वेश्चंस बहुत आसानी से और जल्दी सॉल्व होंगे. ऑल्दो इनिशियली एज आई हैव ऑलरेडी सेड टाइम लगेगा कन्वर्ट करना सीखने में कि परसेंटेजेस रेशियोज में कैसे विजुअलाइज होते हैं, बट अगर उन्हें प्रॉपरली रखना, स्ट्रक्चर करना सीख गए, क्वेश्चंस जल्दी रिजल्ट देंगे. जैसे ये वाला एग्जाम्पल, गायत्री ने टोटल मैक्सिमम मार्क्स का 50% स्कोर किया. मुझे नहीं पता टोटल मार्क्स कितने हैं, बट मान लो 50%. आई होप आप विजुअलाइज करना सीख गए हो 1/2. यानी अगर मेरी एग्जाम के टोटल मार्क्स 2 होते तो गायत्री ने स्कोर कितना किया है 1. आई होप यू रिमेंबर दिस ऑल इज हैपनिंग ऑन रेशियो स्केल. मतलब अगर टोटल मार्क्स इन द एग्जाम वर 2 तो गायत्रीज स्कोर इज 1. दिस इज एग्जैक्टली 50% ऑफ द टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, जो भी आप इसे लिखना चाहें. आगे चलेंगे. एंड येट फेल्ड बाय 12 मार्क्स. अभी जो 12 मार्क्स है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. अभी पासिंग मार्क्स और फेल होने वाले मार्क्स अलग है कहानी, समझेंगे आगे. हैड शी स्कोर्ड 10% मोर देन वॉट शी स्कोर्ड. अच्छा, दिस इज वॉट शी हैज स्कोर्ड. इसका 10% और ज्यादा अगर वो स्कोर करती है ना, 10% यानी क्या 1/10. यानी अगर अभी उसने 10 स्कोर किया है तो 10 पे 1 और एक्स्ट्रा स्कोर करती, यानी 10 अगर अभी उसने स्कोर किया है तो उसने अगर 11 स्कोर किया होता. आई होप यू आर रियलाइजिंग ये मैं कुछ एक्चुअल्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी रेशियोज पे बात है. आई रिपीट, वो क्या कह रहा है, हैड शी स्कोर्ड 10% मोर देन व्हाट शी हैज ऑलरेडी स्कोर्ड. 10% यानी 1/10. 1/10 यानी 10 पे 1 ज़्यादा. यानी अगर अभी उसने स्कोर किया है 10 ऑन अ डिफरेंट स्केल, तो उसको स्कोर अगर वो करती 11, शी वुड हैव गेन्ड पासिंग मार्क्स. यस और नो? अभी कैन आई ब्रिंग दीज टू डिफरेंट रेशियोज ऑन अ कॉमन स्केल? यस, आई होप आई कैन. जल्दी से 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को नीचे. 10 को अगर इधर 2 में मल्टीप्लाई किया, आई गेट 20 हियर. 10 into 1 is 10 and 1 into 11 is 11. अभी इस स्केल पे आई होप यू कैन विजुअलाइज. टोटल मार्क्स अगर एग्जाम के 20 थे, गायत्री ने 50% यानी 10 मार्क्स स्कोर किए, और अगर इसका 10% ज़्यादा यानी अगर वो 11 मार्क्स स्कोर करती, शी वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम, शी वुड हैव जस्ट पास द एग्जाम. यानी ये रेशियो स्केल पे 11 क्या है, पासिंग मार्क्स. अगर एग्जाम टोटल 20 मार्क्स की होती, ये सब रेशियो स्केल पे है क्लास. आगे वो क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम. इसमें से क्या बात दी गई है क्लास? एक बहुत ही आसान सी बात दी गई है. शी हैज स्कोर्ड दिस एंड शी इज स्टिल फेलिंग द एग्जाम बाय 12 मार्क्स. मतलब ये पासिंग मार्क्स हैं, ये उसके द्वारा स्कोर किए गए मार्क्स हैं. यानी पासिंग मार्क्स और गायत्री के स्कोर के बीच में डिफरेंस ऑन रेशियो स्केल इज 1, क्योंकि पास होने के लिए 11 मार्क्स चाहिए रेशियो स्केल पे. गायत्री ने जो स्कोर किया है वो है 10. हाउएवर ऑन एक्चुअल स्केल गायत्री इज लैगिंग बिहाइंड बाय 12 मार्क्स, राइट. और 12 और 1 में रिलेशन, आई होप मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर रेशियो स्केल, दिस इज योर एक्चुअल स्केल. रेशियो वाले वर्ड से एक्चुअल वाले वर्ड तक जाने के लिए यू नीड टू फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच इज 12/1 12. क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम. हमारे रेशियो स्केल पे मैक्सिमम मार्क्स आर 20. 20 into 12 is clearly nothing but 240. So एग्जाम का जो टोटल मार्क्स था, they were 240. I hope you are realizing the beauty of this method, that how easily can you solve these questions, how easily can you visualize these things, and how easily can these things be done. Let's understand percentages through more examples. I hope you can see the question. The question goes like, in a country 55.55% population are bachelor and rest is married. यानी 55.55, I hope आपको याद होगा 55.55 यानी 11.11. Do you remember?
11.11% इज 1/9 यानी 1/9 का 5 टाइम्स यानी 5/9। अगर नहीं समझ आया, व्हाट आई एम गिवन इज 11.11% इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन इज 1/9, बट मुझसे पूछा जा रहा है 55.55% इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन, दैट विल क्लियरली बी 5/9। I hope after a certain amount of practice you can visualize these things in your brain only। यानी अगर एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 9 है तो उस कंट्री में बैचलर्स कितने हैं? 5। तो ऑब्वियसली मैरिड लोग कितने होंगे? क्लियरली 9 - 5 4। आई होप दिस मेक्स सेंस। आगे वो क्या बोलता है? इट सेज ऑफ द बैचलर 60% आर लिटरेट। 60%, अगेन मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। 60%, 20% का ट्रिपल, 20% 1/5, तो 60% इज 3/5। क्या बोलता है वो? ऑफ द बैचलर 60% आर लिटरेट। तो ये जो बैचलर है इसके 60% लिटरेट हैं, यानी अब फॉर्चुनेटली नंबर्स कितनी खूबसूरती से सेट हुए। 5 में से 3 लिटरेट हैं। 5 का 60% इज 3, यानी यहाँ भी फॉर्चुनेटली वो 5 ही है। तो अगर बैचलर्स में से लिटरेट लोगों की बात करें, बैचलर्स का लिटरेट है ना, बैचलर्स में से लिटरेट लोगों की बात करें तो उनमें से 3 लिटरेट होंगे। तो ऑब्वियसली इलिटरेट कितने होंगे? 2। देखेंगे, अगर जरूरत लगी तो लिखेंगे, वरना अभी इतने से काम चलाते हैं। आगे वो क्या बोलता है? एंड ऑफ द मैरिड 40% आर लिटरेट। 40% आर लिटरेट। 40% यानी 20% 1/5, 40% 2/5। ओके, 2/5 का क्या मतलब होता है क्लास? यहां से देखिएगा, अगर टोटल मैरिड लोग 4 हैं तो कहानी कुछ और होगी, बट अगर टोटल मैरिड लोग 5 होते तो उसमें से मैरिड लिटरेट लोग कितने होते? 2। आई होप दिस इज वॉट यू आर अंडरस्टैंडिंग बाय दिस। अभी छोटा सा काम करना होगा, इसको कॉमन स्केल पे लाना होगा। लेट मी रीड द फाइनल लाइन ताकि हम समझ जाएं कि लिटरेट पे डील करना है या लिटरेट पे। वो कह रहा है व्हाट फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर लिटरेट। सो टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन ऐसी है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज लिटरेट। बस जल्दी से इसको रेशियो स्केल को सेम कॉमन स्केल पे ले आओ और जैसे ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। मैं ये सारी वैल्यूज ऊपर की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सारी नीचे की वैल्यूज 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ से देखेंगे क्लास, 5 × 9 कितना? 45। अच्छा, काम की वैल्यूज मल्टीप्लाई करो, बाकी नहीं करो, है ना। 5 × 3 कितना? 15, एंड दिस 4 × 2 8। मैंने बस इन्हीं वैल्यूज को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है जो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है। तो मुझे लिटरेट और टोटल से मतलब है, बाकी वैल्यूज में क्यों मल्टीप्लाई करके वक्त ज़ाया करूँ। सो बैचलर्स में टोटल 15 लोग लिटरेट हैं, मैरिड में टोटल 8 लोग लिटरेट हैं। 15 + 8 इज क्लियरली 23, है ना। सो देयर यू गेट दिस 23 डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन विच इज 45। कैन यू इवैल्यूएट 23 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 45? ऑलमोस्ट 50% के आसपास। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ध्यान से देखना, 45 का हाफ इज 22.5 और ये 23 है, तो 50% से जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक आपका ऑप्शन आंसर होगा। This is how you can get the help from options as well. Although why I am not including options? क्योंकि I don't want you to develop a habit of using options. I really want to work upon your basics first of all. So here at this stage, I'm really not giving you the options. Develop the basics, consolidate the basics, and once you have developed a good command over basics, then we'll move towards the answers.